قانون کے تحت ہے تو گرفتار کریے، اور قانون کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اب بھی لڑیں گے، انشاءاللہ لڑیں گے، آخری دم تک لڑیں گے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ مسلمان اکٹھے ہیں، اور بہت بڑی بات یہ ہے آج سارے تنظیموں کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، یہ مولانا کی مقبولیت کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ میرے بھائی، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج گجرات کے اخبار میں وہ زہر اگلا ہے، آپ سن نہیں سکتے۔ ان کو تو یہ کہا کہ سب سے بڑا دہشت گرد گرفتار ہوا ہے، انہوں نے مدرسوں کے اندر دہشت گردی کا تعلیم دیا ہے۔ یہ تمام گجرات کے اخبار میں وہ جو ہے نا گجرات کی حکومت کے اشارے پہ اور مودی کے اشارے پہ انہوں نے لکھا ہے۔ ہمارے ساتھ میں آخر لوگوں حق سے راضی بنائے آتی ہے نیکوں کو آزمائش کو، یہ مصیبتیں آئے گی اور ان مصیبتوں کو ہم کو سہنا ہے، تھالیاں ٹھوکنا نہیں۔ ابھی میں دیکھا تھالیاں ٹھوک رہے ہیں، اب تھالیاں ٹھوکنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہو کے اللہ کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت، دو قطرے آنسو نکالنے کی ضرورت، آپ کو تاریخ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کبھی آپ نے دیکھا کہ مصیبتیں آئی ہیں تو ہمارے بزرگوں نے سروں کو ٹیک کر آنسوں سے جانباز کو ڈھیلا کر دیا، تو پھر وہاں فتح و نصرت کے جھنڈے لہرانے لگے۔ کوئی موذی جانور ہم کو کچھ نہیں کر سکتا، کوئی موذی جانور رہے پرواہ نہیں ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب میرے رسول کے صحابہ کسی جنگل میں گئے اور وہاں معلوم ہوا کہ کچھ موذی جانور ہیں، تو صرف ایک اعلان کر دیے کہ محمد عربی کے امتی آئے ہیں، اے موذیوں رستہ صاف کرو۔ اگر ہمارے میں کچھ کمی ہے تو یہ رہ گئی ہے کہ آج ہم اللہ کو راضی کرنا بھول گئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، مولانا نے اندر جانے تک نہیں بلکہ اندر سے نکلنے کے بعد ابھی آپ نے جیسے سماعت فرمایا ہے، مولانا نے کہا کہ اللہ کی جو مرضی ہے وہ ہم قبول کریں۔ ہم بھی یہی ہے، مرضی ہے مولا اب ہوگا، اللہ کی مرضی ہے تو مصیبتیں آئیں گی، اور اللہ چاہا تو یہ مصیبتیں پیدا کرنے والے مصیبتوں میں گر جائیں گے انشاءاللہ۔ پکڑے گئے اندر بیٹھے ہیں، معلوم یہ ہوا کہ جب مسلمانوں پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، مسلمانوں پر انگلی اٹھائی جاتی ہے، مسلمانوں پر کوئی اعتماد کیا جاتا ہے، تھوڑی ڈھیل ضرور دی جاتی ہے، مگر اچھے اچھوں کو اللہ نے دنیا سے صاف کر دیا۔ شرط یہ ہے کہ آپ اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط کریں، اور آج ہمارے کو اس بات کا طے کر کے اٹھنا ہے، اور یہاں کی ہونگی لکھنے والے باخبر چھٹی کے لیے پہنچی مولانا دلی میں
अगर हिंदू है उनके लिए भी ये लड़ने की तरह सबसे पहले तो मौलाना की गिरफ्तारी आज मन में आई है। जब अदालत का फैसला आस्था की बुनियाद पर आता है तो हमको भी सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में फसीउद्दीन रफीउद्दीन महमूद अली का एनकाउंटर हैदराबाद में हम खामोश रहे, हमने इंतजार नहीं किया, सिर्फ अखबारी बयान देते रहे हम। उसके बाद में मक्का मस्जिद का बम धमाका, हम खामोश रहे, हमने इंतजार नहीं किया, सिर्फ अखबारी बयान के तहत हम रहे। मैं अगर कुछ कह रहा हूँ तो ये हकीकत और कड़वा सच है, हमको ये समझना चाहिए। उसके बाद मक्का मस्जिद के बम धमाके के बाद में तो मुस्लिम बच्चों को गोली मारकर शहीद किया गया, हम खामोश रहे। फिर से हमने अदालत और इंक्वायरियों पर, इंक्वायरी कमीशनों पर हमने भरोसा किया। उसके बाद में जिन बच्चों की गिरफ्तारी अमल में आई, 18 महीने तक बच्चे जेल में रहे, हमारी तरफ से कोई नुमाइंदगी नहीं की गई, हम खामोश रहे। ये तमाम खामोशियों की नतीजा ये रहा कि आज हमारे ऐसे उलमा को गिरफ्तार किया गया और ये बार बार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हैदराबाद ही ऐसा मुल्क है, मुल्क का हैदराबाद एक ऐसा रियासत है जहाँ से एक दहशतगर्दी का अड्डा, दहशतगर्दी के स्कूल से मदरसे चलाए जा रहे हैं। आखिर क्या बात है कि हैदराबाद को बार बार टारगेट किया जा रहा है? यकीनन जब भी यहाँ पर हिंदुस्तान का अगर पाया तक दिल्ली है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों का पाया तक हैदराबाद है। चाहे वो कश्मीर का जलजला हो या गुजरात का फिसालात हो, सबसे पहले हम हैदराबादियों ने जब भी हिंदुस्तान के किसी मुसलमान ने ललकारा, सबसे पहले हम आगे बढ़कर मदद की। तो इसी का ये नतीजा है कि हमारे उलमा व मशाइखीन को आज टारगेट किया जा रहा है। मैं मनीष बचाओ तहरीक की तरफ से पूरा जो भी एहतजाजी रायमंद या जो भी ये कोशिश की जाएंगी उसके अंदर हम साथ देने का वादा करते हैं। साबिक़ा में हमने ऐसे एहसास मसलों पर हमने बराबर साथ दिया, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जो अखबार में जो लिखा गया है, मैं अभी आने से चंद मिनट पहले अखबार में जो गुजरात और हिंदुस्तान की बड़े शर्म की बात है कि इंग्लिश अखबार एक ऐसे मौलाना के ताल्लुक से ये लिख रहे हैं कि सबसे पहले उसके अंदर एक बात ये लिखी गई कि मौलाना को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि नंबर 1 टू फाइंड आउट मोर अबाउट टेरर नेटवर्क। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि एक अंग्रेजी अखबार लिखता है कि मौलाना को इसलिए गिरफ्तार किया गया है टू फाइंड आउट मोर अबाउट टेरर नेटवर्क। यानी बात है ये मौलाना के ताल्लुक से ये लिख रहा है। यकीनन साबिक़ा में जितने भी IPS के ओहदेदार इस्तीफा या नौकरी से सुबह हुए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम से लेकर डायरेक्टर जनरल ऑफ आंध्र प्रदेश दिनेश रेड्डी आज तमाम बीजेपी में जा रहे हैं। इस इज्तिमा से मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि साबिक़ में जितने भी IPS ऑफिसर जो फैसले किए नौकरी पे रहते हुए आज जो बीजेपी में जाए हैं, उनकी तमाम फैसलों की तहकीकात की जाए। और मेरा ये मुतालबा है क्योंकि दिल्ली में जो गिरफ्तारी अमल में आई, दिल्ली में भी गवर्नर रूल यानी कांग्रेस का रूल, हैदराबाद में भी सदर जमहूरिया का रूल, हैदराबाद में भी यहाँ पर गवर्नर का रूल। तो हम चाहते हैं कि ये जो नेक्सस बिटवीन दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस, इसको बाहर आना चाहिए कि दिल्ली पुलिस में ऐसे कौन RSS के कार्य करता है, हैदराबाद पुलिस में ऐसे कौन RSS के कार्य करता है जो ये गिरफ्तारी को अमल में लाए। मनीष बचाओ तहरीक की तरफ से मैं इसकी निंदा करता हूँ और मुतालबा करता हूँ कि अब तक हमारी खामोशी को ये ना समझे कि हम खामोश हैं, क्योंकि ये खामोशी तूफान के आने से पहले की खामोशी है या जिंदा सुबह कि सिर्फ वो मुसलमानों को दहशतगर्द करार देने की आलमी साजिश के शिकार हो चुके हैं। आज बड़ी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सियासी कायदीन भी है, उलमा भी है, दानिश्वर भी है। मैं तमाम उलमा और दानिश्वरों से अपील करता हूँ, आप तमाम सियासी कायदीन को और तमाम उलमा और मशाइख और तमाम इंटेलेक्चुअल्स को एक प्लेटफॉर्म पर बिठाइए और हमारे आगे के प्लान को बनाइए ताकि आइंदा हम पर कोई इस तरह का गिरफ्तारी ना कर सके। आज देखिए हमारे हाथ
पिछले 7-8 साल से अब्दुल मुगनी साहब, उनके अफराद ख़ानदान सारे जानते हैं। जब से हमने नई सड़क चंचलगुड़े में एक मस्जिद गवर्नमेंट सत्ता बनाई, वो उन्हीं की और खालिद सैफुल रहमानी की ज़ेर सरपरस्ती चलती है। मैं जितना उनकी फैमिली इस दुख में है, मैं भी उसी तकलीफ में हूँ। मैं दुआ गो हूँ मौलाना को अल्लाह इस्तिक़ामत दे, उनके चाहने वालों को सब जमील अता फरमाए और जल्द से जल्द मौलाना की रिहाई अमल में आए। शुक्रिया। खुदा किया गया कि साहब कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, सईद अकबर साहब को रखा गया, कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, अब मौलाना अब्दुल कबीर साहब को रखा गया। तो मैं इन बड़ों की खिदमत में ये सवाल रखना चाहता हूँ या गुजारिश रखना चाहता हूँ कि जब ये लोग बहैसियत मुल्ज़िम गिरफ्तार करते हैं और मुजरिम साबित नहीं कर सकते, तो अदालत जब इनको बेकसूर साबित कर देती है, तो क्या हम इन पुलिस के जिम्मेदारों पर हत्या इज्जत का मुकदमा दायर करके जान खड़ा किया? मैं आपके जज्बात का एहतराम करता हूं, प्लीज मेरा मैसेज जाने दीजिए कि जिस कठेरे में हमें मुजरिम बना, मुल्जिम को मुजरिम बनाकर इन्होंने खड़ा किया है, और जो जिम्मेदारान हमें गिरफ्तार करके ले जाते हैं और हमें मुजरिम अदालत में साबित नहीं कर पाते हैं, तो क्या हम उन पर मुकदमा दायर करके उसी कठेरे में उनको नहीं खड़ा किया जा सकता है कि इन्होंने हमारी इज्जत को पूरे हिंदुस्तान में दामदार किया? क्या हम उन पुलिस अफसरान पर हत्या इज्जत का मुकदमा दायर नहीं कर सकते? हमें इस भाई पर दहशतगर्द साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, अगरचे कि वो इस साजिश में कामयाब नहीं होंगे। अदालत उनके मुंह पर तमाचा मारेगी जब वो कोई सबूत नहीं पेश कर सकेंगे, चाहे वो प्रेस मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। जिस तरह से जहर मौलाना के ताल्लुक से उगल रहे हैं, ये सिर्फ मौलाना के ताल्लुक से नहीं है, बल्कि हर टोपी और दाढ़ी वाले के ताल्लुक से हिंदुस्तान के दूसरे हमारे शहरियों को ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस मुल्क के नौजुबिल्लाह गद्दार हैं और दहशतगर्द हैं। तो सवाल ये है, ये मीडिया को क्या इतनी आजादी है कि वो बिना किसी सबूत के, जबकि अदालत ने कोई जुर्म उनके ऊपर साबित नहीं किया और अदालत ने उन्हें मुजरिम करार नहीं दिया है, जब अदालत मुजरिम करार ही नहीं दी है, तो फिर उनको बावजूद ज़राए से उनको दहशतगर्द साबित करने की साजिश रचाना, क्या ये मीडिया का इंसाफ है? आ रहा है, एक के बाद एक को निशाना बनाया जा रहा है, और ये इत्तेहाद और इत्तेफाक की जो बातें हम स्टेज से करते हैं, अल्लाह करे कि ये वक्ती न हो, अल्लाह करे कि ये वक्ती न हो। 313 से लड़ता था जमाना है, आज करोड़ों गुलामी के हवाले। तुम एक हो तो बन सकते हो खुर्शीदो मुबीन, तुम एक हो तो बन सकते हो खुर्शीदो मुबीन, वरना इन बिखरे हुए सितारों से क्या बात करें। तो मैं अपने बड़ों से दरख्वास्त करता हूँ कि हम संजीदा तौर पर इस पहलू पर गौर करके इस हैसियत से वो दारुल देवबंद में मौजूद थे। चुनांचे इतवार के दिन उन्होंने एक जहाज से दिल्ली जाने का इरादा किया, उसका टिकट भी हासिल कर लिया, लेकिन किसी वजह से वो जहाज छूट गया। फौरन एयरपोर्ट पर दूसरा टिकट उन्होंने लिया और 7:30 बजे की फ्लाइट से वो दिल्ली के लिए रवाना हुए।
किसी किस्म का कोई मुतालबा नहीं हुआ, और ना रियासती पुलिस में और ना अहमदाबाद की पुलिस में और ना हुकूमत ने किसी ने भी कोई इशारा नहीं किया, ना उनका इंदिराज है ये तो मालूम था। लेकिन 10 साल के बाद अचानक ऐसे मौके पर जब इलेक्शन करीब में है और हालात जो है मुल्क के सही नहीं है, ये अपने काम के लिए दारुल देवबंद के इजलास में शिरकत के लिए यहाँ से रवाना हुए और 9:35 या 40 के करीब वो एयरपोर्ट में पहुँचे। माहौल के एतबार से नॉर्मल अंदाज में, कोई किसी किस्म का टेंशन नहीं, अपना हाथ का सामान लेकर बाहर निकल गए। वहाँ 2 नौजवान मौलाना के शागिर्द उलमा उनको लेकर बाई कार देवबंद जाने वाले थे, उनको लेने के लिए इंतजार में थे और मौलाना उन तक पहुँच भी गए और मौलाना उन लोगों ने मौलाना ने इस्तेमाल किया, उनका टेकी और उनका सामान अपने हाथ में ले लिया। और इसी अवस्था में 4 लोग जो कि कुरान लिबास में थे वो मौलाना के करीब में आ गए और चारों तरफ से उनको घेर लिया और उनसे उनका बोर्डिंग पास मांगा। जब बोर्डिंग पास उन्होंने दिखाया तो उन लोगों ने सुना ये कहा कि हाँ यही है, और उसके बाद उनको बाजू ले गए। ले जाते उनका फोन भी ले लिया, उनका पर्स भी ले लिया, उनकी आईडी वो सब ले ली और उनका केस इन बच्चों ने उलमा ने हाथ में ले लिया तो वो उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया और ले जाकर एयरपोर्ट की जो पुलिस ऑफिस है वहाँ ले जाकर मौलाना को बाहर बिठाया, इन दोनों को अंदर बिठाया और अंदर बिठाकर इनसे पते लेने में और जो है नंबर वगैरह लेने में मौलाना से क्या रिश्ता है, मौलाना से क्या ताल्लुक है, पूछने में मसरूफ है। उनमें से 2-4 आदमी थे, उनमें से लोगों ने कहा कि भाई यहाँ के ऑफिसर कहाँ है पुलिस स्टेशन के, वो सो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनसे कहो कि अहमदाबाद के पुलिस ऑफिसर आए हुए हैं और वो बात करना चाहते हैं। ये बात हमारे उलमा के कान में पड़ी, इसके अलावा कुछ नहीं मालूम कि कौन थे लेने के लिए, कौन आए थे, कौन ले जा रहे थे, क्या मकसद है, कुछ नहीं मालूम। वो लोग अंदर बैठे रहे। उसी असला में मौलाना को लेकर ये लोग वहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल हो गए। आप सुनिए कितने बुनियादी इल्जाम लगाए गए हैं। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने कल बहुत एतवार दिल्ली एयरपोर्ट से इस्लामी रहनुमा मोहम्मद अब्दुल नबी को गिरफ्तार कर लिया है, जो 2003 की जिहादी साजिश और ISI की मनसूबा बंदी में शामिल है, जो पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की जानिब से रची गई थी। ये तो जो है बिल्कुल बेहुदा और बेबुनियाद बात है। हम सब इसकी नफी करते हैं और इसकी तरदीद करते हैं। मोहम्मद अब्दुल नबी पीर के रोज सुबह अहमदाबाद लाया गया, जहाँ एक मकामी अदालत में पेश किया गया। सुबह लाया गया, उनको लाने में तकरीबन जो है कई 15 घंटे लगे हैं और 5 बजे अदालत में उनको पेश किया गया। अब्दुल नबी अशरफ के नाज़िम हैं और काराबाग सैदाबाद हैदराबाद में रहते हैं। वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने के साथ ही गिरफ्तार कर लिए गए। अब्दुल नबी को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की जानिब से कई मरतबा एक समन जारी किया गया है कि वो पुलिस के सामने हाजिर हो। कई मरतबा समन को नजरअंदाज किए जाने के बाद क्राइम ब्रांच के अफसरों ने चंद महीनों से उन पर गहरी नजर रखी। जैसे ही उन्हें मालूम हुआ कि अब्दुल नबी दिल्ली में मुनादिरा दीनी मदारिस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जा रहे हैं, टीम ने उन्हें एयरपोर्ट पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया। ये भी बिल्कुल झूठ बात है। 2 महीने तुम नजर रखे हुए हो, 2 महीने में बंदा यहीं पर है, सफर कर रहा है, एयरपोर्ट में जा रहा है, उम्रे के लिए जा रहा है, उम्रे से वापस आ रहा है, गिरफ्तार किया। दिल्ली के इंतजार क्यों किया तुमने? समन भेजा गया, कोई समन आज तक किसी के पास नहीं मिला। करीब गिरफ्तारी का मामला है, उस पर मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन चंद चीज़ें मैं इब्तिदा में कहना चाहूँगा। पहली बात मैं कहना चाहूँगा, हम शरीयत के इलाके के बारे में जाते, यहाँ राइट पर से किसी साहब ने कहा कि साहब हम मरण दौड़ रखेंगे, इस्लाम क्या खुशी की इजाज़त देता है? जब मरण दौड़ रखा जाते क्या इस्लाम खुशी की इजाज़त देता है? तो जज्बा चाहे कितने ही खड़ी हो, जज्बा कितने ही उठते हो, हम शरीयत के इस्लाम के दीन को जाने होंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, और मेरी बात को पूरे सुकून के साथ समझने की कोशिश की जाए। एक तो ये है कि वाक़या होता है, तुम जज्बात में आ जाते हैं और जज्बात में आके भी बहुत से जज्बात पैदा करते हैं, लेकिन जब वाक़या खत्म हो जाता है तो जो काम हमको करना चाहिए वो काम नहीं करते। मीडिया के इनका मामला नहीं कर रहा है, लेकिन मीडिया
क्या आपको रखने से मिलता है या पुलिस उसको ये कहानी देती है? ये सोच रहा है मीडिया अंग्रेजी अखबार अंग्रेजी क्या ये जगत में बताते हैं बात लिखते हैं या ये उनके बात करने लगा पुलिस थी और नारे में गलत साबित हो जाए उनका साबित हो जाए आप सब पुलिस को लगा कर उन पर बात करते हैं लेकिन उसका तो सब के माता पे डालता कोई समझाता नहीं। अब इस मामले में जरूरत इस बात की है कि मौलाना अब्दुल सईद साहब की गिरफ्तारी हर जिले कम से कम जिले के हर जिले में जहाँ मुसलमानों की बड़ी आबादी है वहाँ